Welcome back. So, I'm back again with the second series of the chapter Human Settlements. In the first class, we studied about the concept of human settlements, then the criteria or the classification. We had started with rural settlements. Today, we are going to do with the rural settlement patterns. So, let us start. Patterns. What do you understand by patterns? Patterns means forms, shapes, or arrangement of houses. Okay, so rural settlements throughout the world reflect a certain kind of pattern that is the topic of discussion today. So rural settlements can be classified on the basis of a number of criteria. हम rural settlements को on the basis of number of criteria classify कर सकते हैं. सबसे पहला criteria है on the basis of setting. Setting means location. So, on the basis of setting, the major type of rural settlements are plain villages, plateau villages, coastal, forest villages and desert. मतलब ये settlement कहाँ located है? जैसे plain areas में तो plain villages, plateau में है तो plateau villages, coastal में है तो coastal villages, forest villages, and in desertic areas that is known as desert villages. Okay. Now remember that we have criteria. Okay, those criteria should be qualified to be for an area to be qualified as a rural area. Second क्राइटेरिया जो कि क्लासिफिकेशन का है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मतलब उस एरिया में लोग क्या एक्टिविटी में इंगेज है व्हाट आर द फंक्शंस दैट दे आर डूइंग सो दे मे बी ओके पीपल सपोज दे आर डूइंग फार्मिंग देन हम उसको फार्मिंग विलेज बोल सकते हैं या फिशरमैन्स ज़्यादा है तो फिशरमैन विलेजेस लंबरजैक विलेजेस पैस्टोरल विलेजेस लंबरजैक मीन्स डीलिंग इन फॉरेस्ट्री एंड पैस्टोरल मीन्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. The third criteria to classify your rural settlement is on the basis of forms or shapes of the settlements. मतलब वो settlement कैसा form ले रहा है कैसा shape ले रहा है उसके basis पे भी हम rural settlement को classify कर सकते हैं. जैसे कि geometrical shapes होते हैं ठीक है तो एक settlement में भी geometrical shapes बना रहा होगा मे बी a rectangle or a circular pattern or a T-shaped pattern etc. So, there are various kinds of settlements on the basis of forms or shapes. First is known as your linear pattern. Now, we will discuss the forms or shapes of rural settlements with the help of the following diagram. So, let us see the number one linear pattern. Linear pattern of rural settlements क्या होता है ये generally form होता है जब settlements or the houses are built across a road, a railway line, a canal or a river. Okay, can you see this? There is a road, ये road है, main road है, and houses इसके opposite side में construct किया गया है like a linear pattern. Linear means line. एक लाइन पैटर्न में कंस्ट्रक्ट किया गया है उसको हम लोग लीनियर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स भी बोलते हैं. ओके, इट फॉर्म्स अ लाइन लाइक स्ट्रक्चर. सो रिमेंबर the houses are constructed on the either side of a road, railway, canal or even a river. The second type of settlement जिसको हम लोग क्रॉस शेप्ड पैटर्न भी बोलते हैं. The cross shaped pattern. Now, when is a cross shaped pattern formed? Cross shaped pattern of rural settlements तब बनता है जो two roots cross each other. Okay, they cross each other and form an angle of 90 degree. Can you see this? It is forming an angle of 90 degree and the houses are constructed on all four sides of the road. Okay. Next है हमारा star like pattern. Star like pattern तब बनते हैं जब various roots they radiate from different directions. मतलब जब बहुत सारे रास्ते एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाते हैं या उस मेन सेंट्रल पॉइंट से different directions may diverge हो जाते हैं and the pattern looks like a star shape. Such kind of pattern is known as a star like pattern of rural settlement and houses are constructed in along all the routes. If you see the diagram properly all sides में houses construct किए जाते हैं. Next we have the T-shaped pattern. Now T-shaped pattern तब बनता है जब the road or the roots they meet in such a way that they form a
T kind of junction. Okay, now you may have heard of a term that suppose this is a route and another route is coming and joining it at a particular point, इसको हम लोग junction point भी बोलते हैं. ठीक है, सो ये इस तरह से मीट होता है कि ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर टी बना देता है एंड हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड अगेन ऑन ऑल साइड्स, स्पेशली 3 साइड्स ऑफ द रूट्स. कैन यू सी दिस? दे आर हाउसेस आर हियर ऑन दिस साइड ऑन दिस साइड एज वेल. ठीक है, सो मेन रूट में कोई दूसरा रास्ता आके कन्वर्ज हो रहा है एंड जंक्शन पॉइंट बना रहा है, उसको हम लोग टी शेप पैटर्न भी बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव द circular pattern of rural settlement. Okay, now circular pattern का मतलब वो होता है, वो it looks like a circle. So generally circular pattern forms when suppose there is a pond or a tank or a depression. ओके, सेंटर में क्या होता है? पॉन्ड होता है, टैंक होता है या डिप्रेशन होता है, एंड उस सेंट्रल पॉइंट से द रोड्स दे डाइवर्ज. ओके, दे डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सेंटर से क्या हो रहा है? सेंटर से स्ट्रीट्स दे आर रेडिएटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड देन द हाउसेस आर बिल्ट ऑन all sides of the routes. Okay, such kind of settlement is known as a circular pattern of settlement. Now such kind of villages are found in West Bengal in India and also Uttar Pradesh in India. तो यहाँ पे क्या होता है? जनरली पीपल दे सेटल जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल हो. बीच में इमेजिन कर लीजिए एक पॉन्ड हो सकता है या एक सर्कुलर पैटर्न भी हो सकता है एंड द रोड्स आर रेडिएटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. देन वी हैव द नेक्स्ट पैटर्न जिसको हम लोग डबल पैटर्न ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं. ना डबल पैटर्न का मतलब ये होता है व्हेन अ रोड क्रॉसेस अ कैनाल और अ रिवर थ्रू अ ब्रिज. मतलब क्या होता है? एक रोड क्रॉस कर लेता है, किसको? एक कनाल को क्रॉस करता है या रिवर क्रॉस करता है थ्रू अ ब्रिज. ओके, नाउ सी ये बीच में रास्ता है एंड यहाँ पे ब्रिज है. सो ये रास्ते ने क्या किया है? इस कनाल को क्रॉस किया है, नीचे रिवर है. ओके, इस कनाल को क्रॉस किया है थ्रू अ ब्रिज. एक ब्रिज होता है, उसको उसके थ्रू क्रॉस किया जाता है. सच काइंड ऑफ सेटलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल पैटर्न ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं. एंड जो घर है वो आइदर साइड ऑफ द रूट्स में हमें दिख रहा है. Okay, such kind of settlement is known as your double pattern of rural settlement. Now besides that बहुत सारे ऐसे रूरल सेटलमेंट के फॉर्म्स एंड पैटर्न्स है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फ्यू मैं एग्जांपल दूँ, एक और है वाई शेप सेटलमेंट. देखिए ये एक वाई जैसा फॉर्म बना रहा है. ओके, अल्फ़ाबेटिकल लेटर वाई. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मेन रोड आ रहा है एंड वो 2 डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो रहा है एंड वाई शेप काइंड ऑफ सेटलमेंट बना है. एंड हाउसेस देखिए ऑन either side of the road भी constructed है. Okay, now besides that cruciform settlement जो कि similarly cross shaped settlement जैसा होता है, जो जब two routes they converge each other. Okay, they this cross each other and घर क्या होता है? on the opposite side बनाया जाता है. उसको हम cruciform settlements भी बोलते हैं या cross shaped settlement. Okay, remember cross shaped को हम cruciform settlements भी बोलते हैं. Okay, so ये थे कुछ रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स एंड शेप्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कम्स इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर section. Okay, so this was all about the classification of rural settlements. Next we will do the problems of rural settlements. Now जो rural settlements है स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू द डेवलप्ड कंट्रीज़. मतलब जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में वहाँ पे रूरल सेटलमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. सो जो प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स है वो मैंने 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया. उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं. सो सबसे पहला प्रॉब्लम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ फेस करते हैं स्पेशली रूरल सेटलमेंट्स में, वो है वाटर सप्लाई. ना प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला वाटर सप्लाई का ये प्रॉब्लम है स्पेशली जो विलेजेस माउंटेनस एरियाज एंड अरिड एरियाज, अरिड मीन्स ड्राई डेजर्टिक एरियाज में लोकेटेड होते हैं. वहाँ पे पीने का पानी ना होने की वजह से दे हैव टू ट्रैवल टू लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर. उनको बहुत दूर तक ड्रिंकिंग वाटर के लिए जाना पड़ता है एंड देन दे कम बैक विद द वाटर. ओके, ये पहला प्रॉब्लम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? स्पेशली जो पानी है, पीने का पानी में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होता है बहुत सारे विलेजेस ऑफ द वर्ल्ड में एंड द विलेजेस दे सफ़र फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक कॉलरा, जॉन्डिस एट्सेट्रा.
ठीक है, ये दूसरा वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि स्पेशली कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया दे सफ़र फ्रॉम फ्रीक्वेंट फ्लड्स। मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ में क्या होता है, एवरी ईयर फ्लड्स आते हैं, एंड जो फ्लड्स होने की वजह से क्या होता है, विलेजेस को डैमेज होता है। एंड ड्राउट्स मीन सूखा पड़ जाना, कभी कभी पानी नहीं पड़ता है तो दे कैन बी द प्रॉब्लम ऑफ ड्राउट्स। एंड क्रॉप फेलियर मीन्स जब मानसून ना हो तब भी क्रॉप फेलियर हो जाता है। एंड ये रूरल सेटलमेंट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और रूट कॉज भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जनरल पब्लिक फैसिलिटी। सो जनरल पब्लिक फैसिलिटी मतलब रूरल सेटलमेंट, स्पेशली वो जो बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं वर्ल्ड में, सिंस हम वर्ल्ड डील कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी नहीं है सबसे पहले। एंड दूसरा ये है कि वहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, मतलब प्रॉपर हॉस्पिटल्स, गुड केयरिंग सेंटर्स नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हायर इंस्टीट्यूट्स नहीं है, एजुकेशन, इवन ऐसे विलेजेस है जहाँ पे इवन प्री प्राइमरी स्कूल्स भी अभी भी नहीं है। दे हैव टू ट्रैवल टू लॉन्ग डिस्टेंस, जो बच्चे को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ता है एंड तब वो स्कूल जा पाते हैं। ओके, सो इस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जनरल पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है, पीपल स्पेशली दैट्स वाई दे माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स उनको फोर्स करते हैं माइग्रेट करने के लिए, स्पेशली अर्बन एरियाज में, ताकि वो अवेल कर सके सारे फैसिलिटी। नेक्स्ट नंबर थर्ड प्रॉब्लम इज़ योर पुअर हाउसिंग फैसिलिटी। मतलब हाउसिंग का भी प्रॉब्लम है स्पेशली विलेजेस में, क्योंकि हाउसेस जो बनाए जाते हैं वो लोकली मेड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मड, वुड, थैच एक्सेट्रा। सो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स हो जाए तो ये जो मटेरियल से बना हुआ हाउसेस है वो ससेप्टेबल होते हैं डैमेज के लिए, एंड फ्लड्स भी आ जाते हैं, जिसके वजह से एवरी ईयर विलेजेस का मेंटेनेंस करना पड़ता है। देन मोस्ट ऑफ द विलेजेस ऑल्सो लैक प्रॉपर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स villages suffer from the attacks of wild animals, so that's why domestic animals and their fodder is also kept in the houses. Okay, so these are the problems in terms of housing. Next problem is your transport and communication. Now most of the villages of the world, they have very narrow means very narrow road. Okay, the breadth is not large, and unmetalled roads होते हैं, मतलब you can say कच्चा roads होते हैं, unmetalled. Okay, it's very कच्चा in nature, and when there is again heavy rainfall क्या होता है, ये रास्ते टूट जाते हैं एंड ये मेन टाउन से कट ऑफ हो जाते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड. नेक्स्ट इज दैट दे लैक मॉडर्न communication system. Okay, it's cut off from the rest of the world during the rainy season, and especially during the emergency services जब provide करना होता है या कोई emergency आ गया है उस village में, तब भी proper transportation and communication ना होने की वजह से it poses serious difficulties, especially to the people living in rural settlements of the developing countries. Okay, so keep in mind, since we are doing the problems of rural settlements, that to developing countries, okay, these points are very important to discuss. Okay, so here we end with the rural settlements. In the next video I'll tell you about, we'll start in fact the topic of urban settlements, and we will see each topic in detail. So this much for today, and thanks for watching.